students, in the last video we studied about the capillary action. Okay, so what is exactly the capillary action? So capillary action means if we dip a capillary tube in a liquid which weighs the solid completely or partially, then in that case what happens? The level of liquid inside that capillary tube, it rise up. Okay, and on the other hand, if we dip the same capillary tube in a liquid which does not weight the solid, okay, so like a mercury, then what happens? The level of liquid inside that capillary tube, it gets fall down. Means this phenomena of rise of liquid level and fall of liquid level inside the capillary tube, that phenomena is called as the capillary action. तो उस phenomena को हम क्या कहते हैं? Capillary action कहते हैं. Now why there is a rise of liquid level in case of some liquid like water or kerosene? Okay, means the liquid which weighs the solid completely or partially. And why there is a fall of liquid in case of liquid like a mercury? Okay, मतलब वहाँ पे liquid का level बढ़ता क्यों है, fall क्यों होता है? तो ये why this thing is happen? So that's we are going to study in today's video. Okay, so why there is a fall in capillary tube or capillary fall? So why there is a capillary fall is there? Capillary tube के अंदर liquid की level कम क्यों होती है? Now as we know that, suppose I consider one container which contain a liquid like a mercury. Okay, so this container contain a mercury. Okay, I dip this capillary tube inside this container. The capillary tube is a tube having a very fine bore or having a very small diameter up to 1 nanometer or 1 millimeter. Okay, so this capillary tube I dip in a mercury. Okay, so now you know that when we dip that capillary tube in a mercury, you know it. What happened? आपको पता है वहाँ पे क्या होगा कि the level of liquid inside this capillary tube it gets fall down. तो capillary tube के अंदर की लेवल क्या होती है? कम होती है. आपको पता है. अब ये capillary tube के अंदर की लेवल कम क्यों होती है? That's the things we are going to study here. Okay? तो liquid की लेवल कम क्यों होती है? तो ये हमें आज इस वीडियो में देखना है. अब लिक्विड की लेवल कम क्यों होती है, इसके लिए वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एक्सेस प्रेशर. तो प्रेशर के बारे में हमें पता है. तो अगर लिक्विड का सरफेस प्लेन रहा तो हमने क्या कंसीडर किया था, हमने देखा था कि प्रेशर क्या रहता है वहाँ पे सेम रहता है. अगर लिक्विड का फ्री सरफेस इफ इट इज अ कॉन्वेक्स वन, इफ वी लुक फ्रॉम द अपर साइड, देन द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इज मोर देन द प्रेशर आउटसाइड द लिक्विड. और हमने देखा था कि कॉन्केव सरफेस है तो वहां पे क्या होता है कि लिक्विड के बाहर प्रेशर ज्यादा रहता है देन द प्रेशर ऑफ लिक्विड इनसाइड लिक्विड. ओके, सो नाउ सी हियर एज व्हाट हैपन हियर, देयर इज अ फॉल ऑफ लिक्विड लेवल इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब. नाउ फॉर दिस आई हैव कंसीडरिंग 3 molecules हियर. आई हैव 4 molecules. सपोज दिस इज मॉलिक्यूल बी, दिस इज मॉलिक्यूल this is suppose molecule A, this is molecule suppose C, and this is a molecule suppose D. Okay, so I consider the molecule A. I have considered molecule A. So molecule A is above the convex surface, above the convex surface, convex surface के above the convex surface and inside capillary tube, and inside capillary tube. Capillary tube के अंदर है. CT I am writing in a short. Okay. Then I have considered molecule B, which is below convex surface. Convex surface के नीचे है, which is just below the convex surface. Okay. Convex below the convex surface and inside capillary tube. Capillary tube के अंदर है, inside capillary tube. Okay. Then I have considered molecule C. Now molecule C is above free surface of liquid. It is above free surface of liquid. Okay, above free surface and outside capillary tube. Capillary tube के बाहर है and outside capillary tube. Outside capillary tube. Similarly, molecule D just below the free surface of liquid, below free surface of liquid, below free surface of liquid. Okay, below the free surface of liquid and inside capillary, inside liquid. Liquid के अंदर है ना.
it is inside the liquid but outside the capillary tube, or we can say it is just below the molecule C. Okay, so we have considered here 4 molecules, molecule A, B, C and D. So molecule A is which is inside the capillary tube but it is above the convex surface. Okay, the molecule B, it is inside the capillary tube and it is inside the liquid and it is just below that convex surface. Molecule C, it is above the free surface of liquid, okay, and it is outside the capillary tube. Molecule D, it is just below the free surface of liquid or below the molecule C, and it is also inside the liquid but it is outside the capillary tube. Okay, so now see here, as we know that we have already studied that, suppose see here, suppose first we consider PA. PA is the pressure at point A, PB is the pressure at point B, PC is the pressure at point C and PD is the pressure at point D. Means we have considered PA as a pressure at point A, PB as a pressure at point B, PC as a pressure at point C and PD as a pressure at point D respectively. Okay, so as we know that we have already studied that if the free surface of liquid is the convex one, and we all know that if the free surface is the convex one, then the pressure inside the liquid is more than the pressure outside the liquid. यहाँ पे प्रेशर ज्यादा क्यों रहता है? क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स है, एटमॉस्फेरिक फोर्स भी इट इज आल्सो डाउनवर्ड डायरेक्शन, और रिजल्टेंट फोर्स दोनों का भी क्या रहता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है. सो दैट्स व्हाई द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस इज मोर देन द प्रेशर आउटसाइड द लिक्विड. मींस यहाँ पे देखिए तो पॉइंट बी पे प्रेशर ज्यादा रहेगा या पॉइंट ए पे ज्यादा रहेगा? क्योंकि पॉइंट बी कॉन्वेक्स सरफेस के नीचे है और पॉइंट ए अबव द कॉन्वेक्स सरफेस. तो in this case the pressure at point B is greater than the pressure at point A. So therefore we can write pressure at point B is greater than pressure at point A. Suppose this is equation number 1. Okay, तो हमने इसको equation number 1 कंसीडर किया क्योंकि हमें पता है कि अगर convex surface है लिक्विड का, if the free surface of a liquid is a convex one, then we know that the pressure inside the liquid के अंदर का प्रेशर क्या रहता है? It is more than the pressure outside the liquid. लिक्विड के बाहर के प्रेशर से वो ज्यादा रहता है. ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट PB is greater than PA. अब देखिए यहाँ पे if we consider molecule A and C. अब A and C देखो दोनों लिक्विड के अंदर है क्या? नहीं, both molecules are outside the liquid and though it is inside the but molecule A is inside the capillary, but both are outside the liquid and on both these molecule A and C the pressure will be exerted by the air and the pressure exerted by air is called as the atmospheric pressure. तो इन दोनों के ऊपर कौन सा प्रेशर एक्ट होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब देखो यहाँ पे हमें हम इस we can easily observe that हमें यहाँ पे दिख रहा है कि molecule A and C both the level both are at the same horizontal level. दोनों क्या है? एक ही horizontal level पे है, molecule A and molecule C. ओके, दोनों एक ही लेवल horizontal level पे है और दोनों को प्रेशर भी क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है. तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? द प्रेशर एट मॉलिक्यूल A इज इक्वल टू प्रेशर एट मॉलिक्यूल C. ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया. मॉलिक्यूल A पे जितना प्रेशर है क्योंकि ये दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे है और दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे है और दोनों पे प्रेशर भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा. इन दोनों पे प्रेशर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा क्योंकि इनके ऊपर एयर एक्सर्ट प्रेशर कर रहा है. तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दोनों एक ही सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है. तो देखो दोनों की लेवल एक ही है तो इनको प्रेशर क्या रहेगा? PA इज इक्वल टू PC रहेगा. ओके, अब देखिए हमें क्या कंसीडर करना है. नाउ सी हियर इफ यू कंसीडर मॉलिक्यूल C एंड D. मॉलिक्यूल C और D के बीच में कैसा है? मॉलिक्यूल C और D के बीच में फ्री सरफेस कैसा है? प्लेन फ्री सरफेस है. molecule between molecule C and D plane free surface is there. So we know that हमें पता है कि molecule C और D के बीच में प्रेशर कैसा है? प्लेन सरफेस है. तो प्लेन सरफेस रहा तो दोनों के बीच में प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा. दोनों फ्री सरफेस सेम है C और D के बीच में. तो PC इज इक्वल टू क्या रहेगा? प्रेशर एट C इज इक्वल टू प्रेशर एट D. प्रेशर एट C इज इक्वल टू द प्रेशर एट D. So that is equation number 3. क्योंकि C और D, अब D लिक्विड के अंदर है और C लिक्विड के बाहर है, बट दोनों के बीच में अब हमने देखा ना कि दोनों के बीच में अगर सरफेस प्लेन है तो C और D के बीच में सरफेस प्लेन है तो दोनों के ऊपर प्रेशर भी, दोनों के बीच में प्रेशर क्या रहेगा?
सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या रहेगा, जीरो रहता है, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही डिसाइड करता है कि व्हाट विल बी द प्रेशर एट बोथ दिस पॉइंट। तो पीसी इज इक्वल टू क्या रहेगा, पीडी रहेगा। अब पीसी इज इक्वल टू पीडी रहेगा, तो इस पे से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 and 3 यूज करके। सो देयरफॉर वी कैन राइट PA इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू PD। PA इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू PD, क्योंकि PA इक्वल टू PC है एंड PC इक्वल टू PD है, तो वी कैन राइट PA इज इक्वल टू PD, मींस PA इज इक्वल टू PC इक्वल टू PD। दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज 4। ओके, बट वी नो दैट the pressure at point B, but we know that pressure at point B is greater than the pressure at point A। अब हमें पता है कि पॉइंट B का प्रेशर पॉइंट A से ज्यादा है, क्योंकि इट इज इनसाइड द लिक्विड एंड इट इज आउटसाइड द लिक्विड। तो बट अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे PA इज इक्वल टू क्या है, PC है, PA इज इक्वल टू PD भी है, तो इस पे से हम लिख सकते हैं कि इट एम्प्लाइज फ्रॉम इक्वेशन 1, सो P pressure at B is greater than pressure at D। तो इसमें से हम लिख सकते हैं pressure at point B is greater than pressure at point D, क्योंकि PA is equal to PC is equal to PD है, but PB is greater than PA, PB PA से ज्यादा है, तो इसका मतलब PB PC से भी ज्यादा हो गया, और PB pressure at point B is greater than pressure at point D से भी ज्यादा हो गया PD। तो therefore we can write, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, PB is greater than PD। ओके, सो PB इज ग्रेटर देन PD हो गया। तो इसमें से क्या देखो आप, यहाँ पे दोनों पॉइंट क्या है, इनसाइड द लिक्विड है, एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर है, दूसरा कैपिलरी ट्यूब के बाहर है, मगर इनसाइड द लिक्विड है। अब देखो दोनों पॉइंट हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या है, सेम है, दोनों पॉइंट तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम है, तो उनके बीच में प्रेशर भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। मगर यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, PB इज ग्रेटर देन PD। अब इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम प्रेशर एट बोथ द पॉइंट P एंड D, तो उसके लिए क्या होता है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों के लिक्विड के अंदर है दोनों, और दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ये सपोज ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट D हो गया। अब दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो दोनों के बीच में प्रेशर भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो दोनों के बीच में सेम प्रेशर रहने के लिए इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर का कुछ मर्क्यूरी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। सम अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी इज कम आउट फ्रॉम द कैपिलरी ट्यूब, एंड दैट्स व्हाई there is a fall of liquid level। तो इस वजह से क्या होता है, वहां पे लिक्विड का लेवल फॉल होता है। सो दैट इज अबाउट द फॉल ऑफ लिक्विड लेवल इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड की लेवल कम क्यों हो रही है, कम क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने ये 4 पॉइंट कंसिडर किए हैं, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, चारों पॉइंट कंसिडर किए हमने, किए है ना। तो चारों पे प्रेशर है PA, PB, PC, PD रिस्पेक्टिवली। अब आपको पता है कि इन जिस फ्री सरफेस का, जिस लिक्विड का फ्री सरफेस अगर कॉन्वेक्स है, अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ इसका फ्री सरफेस मुझे कॉन्वेक्स दिख रहा है, तो मुझे पता है कि लिक्विड के अंदर क्या है, इसका लिक्विड के अंदर का प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। मतलब इसलिए मैंने क्या लिखा कि प्रेशर एट पॉइंट B इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट A। ओके, अब देखो मैंने पॉइंट A एंड C कंसिडर किया। अब A एंड C दोनों क्या है, लिक्विड के बाहर है, और एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर है, मगर वो भी कैपिलरी ट्यूब के लिक्विड के बाहर ही है। तो यस, दिस पॉइंट A एंड C बोथ आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, और दोनों के ऊपर कौन सा प्रेशर एक्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। सो देयरफॉर दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो दोनों के बीच में प्रेशर भी क्या रहेगा, दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो प्रेशर एट पॉइंट A इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट C रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे C एंड D कंसिडर किया बाद में मैंने। C एंड D कंसिडर करने के बाद क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में सरफेस कैसा है, फ्री सरफेस प्लेन है, यहाँ पे प्लेन फ्री सरफेस है, तो दोनों के बीच में प्लेन फ्री सरफेस है। तो हमें पता है कि अगर दोनों के बीच में प्लेन फ्री सरफेस रहा तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या रहेगा, लिक्विड के अंदर 0 रहता है। तो इसलिए आप यहाँ पे दोनों के बीच में C और D के बीच में भी प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये देखो आप इक्वेशन 2 एंड 3 देखो, PA इज इक्वल टू PC है और PC इज इक्वल टू PD है, तो PA इक्वल टू PC इक्वल टू PD लिख सकते हैं हम। ओके, बट हमें पता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 PB इज ग्रेटर देन PA, तो PB PA से ज्यादा है, मतलब PB इज आल्सो ग्रेटर देन PD, PB PD से भी बड़ा रहेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई अब दोनों, मगर देखो यहाँ पे दोनों लिक्विड के अंदर है, एंड बोथ आर इनसाइड द लिक्विड,
and both are at the same horizontal level. So in order to maintain the same pressure at both this point, so some amount of mercury from this capillary tube, it comes outside the capillary tube, and that's why the level of liquid inside this capillary tube it gets fall down. Okay, मतलब यहाँ पे D और B एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे है और दोनों के बीच में प्रेशर भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए. तो वो जो प्रेशर सेम रहना चाहिए वो मेंटेन करने के लिए इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर से कुछ तो अमाउंट ऑफ लिक्विड बाहर निकलता है और उसी वजह से लिक्विड की लेवल क्या होती है, वहां पे फॉल होती है. सो दैट्स व्हाई द लेवल ऑफ लिक्विड इज फॉल देयर. सो दिस इज अबाउट द कैपिलरी फॉल. ओके, तो दिस इज अबाउट द कैपिलरी फॉल. ओके, अंडरस्टैंड? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कैपिलरी राइज. अब राइज क्यों होता है? सो वी विल सी द इट इज बाय टू मेथड्स. देयर आर टू मेथड्स. वन है अपना प्रेशर डिफरेंस मेथड और दूसरा है बाय यूजिंग द फोर्सेस. सो वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी expression for rise or fall inside the capillary tube. Rise or fall inside capillary tube. Inside capillary tube. अब राइज और फॉल मतलब अब ये हम राइज के लिए देखेंगे, मतलब एच मतलब जो भी लिक्विड की लेवल बढ़ती है या कम होती है इसके लिए एक्सप्रेशन देखेंगे. अब ये दो वे से देखेंगे, एक प्रेशर डिफरेंस मेथड है और दूसरा बाय यूजिंग द फोर्सेस. ओके, सो प्रेशर डिफरेंस मेथड पहले हम यूज करेंगे बाय यूजिंग द प्रेशर डिफरेंस मेथड. अब देखिए आपको पता है, सपोज मैं कंसीडर करता हूँ एक मर्क्यूरी मैंने इसमें डाला है. सपोज दिस इज द कैपिलरी ट्यूब एट डीप इन अ लिक्विड हैविंग अ फ्री सरफेस इज अ कॉन्केव. अब मैंने इसका एनलार्ज व्यू दिखाया यहाँ पे, तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड की लेवल कैपिलरी ट्यूब के लिक्विड की लेवल क्या होगी, अंदर की लेवल इट इज मोर देन द लिक्विड लेवल ऑफ लिक्विड आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब. लिक्विड की लेवल ज्यादा होगी. ओके, अब ये यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट हमने देखा, ये टेंजेंट ड्रॉ की मैंने. ओके, अब ये मैंने कैपिलरी ट्यूब कंसीडर की है जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर. आई हैव कंसीडर वन कैपिलरी ट्यूब. ओके, स्मॉल आर इज द radius of capillary tube. Radius of capillary tube x. Okay, capillary tube consider की जिसकी रेडियस कितनी है, r है. r is the capital R is the radius of curvature. Radius of curvature. Radius of curvature of free surface. Free surface of liquid. Okay, that is the radius of curvature of, this is the free surface of liquid, that is the capital R. Okay, so now see here, as we know that we have considered here the expression for capillary rise or fall by using the pressure difference method. Okay, so हम pressure difference method use करके यहाँ पे निकालने वाले हैं. अब देखो यहाँ पे मैं, अब आपको पता है कॉन्केव में लिक्विड की लेवल क्या होती है, राइज होती है. तो मैं सिंपली यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब दिखा देता हूँ आपको. I have considered this as a capillary tube. So this is the free surface of liquid. So this is the tangent. Okay, तो यहाँ पे ये हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट रहता है थीटा. अब ये सपोज मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब ये हो गया उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r. ओके, इस फ्री सरफेस का. और यहाँ से फिर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब ये क्या हो गया, इसकी रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब. ओके, सपोज ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, दिस एंगल भी. तो आप देखिए यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो ये टोटल एंगल क्या रहता है, 180 रहता है. टोटल दिस टोटल एंगल इज 180. अब देखो यहाँ पे एक हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है, मैं आपको रफली बता रहा हूँ. एक टेंजेंट ड्रॉ की है यहाँ पे, तो ये एक एंगल हो गया मेरा थीटा. यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कितना हो गया, 90 प्लस. यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. अब देखो ये प्लेन सरफेस है, इसका टोटल एंगल 180 रहता है, इतना आपको पता है. तो ये हमारा टेंजेंट हो गया, ये एंगल हो गया थीटा. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कितना हो जाएगा, टोटल एंगल 90 प्लस थीटा. ओके, मतलब ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर r है. उसका मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये एंगल थीटा कैसे आया, इसका एक्सप्लेनेशन है ये. ओके, अब यहाँ से फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये भी 90 बन गया. ये रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है तो
तो ये एंगल कितना रहेगा हमारा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, और ये टोटल कितना होगा, ये एंगल रहेगा 90, और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो टोटल एंगल कितना आया हमारा, ये 90 प्लस थीटा माइनस प्लस 90 माइनस थीटा, तो थीटा थीटा गेट्स कैंसिल, तो टोटल एंगल कितना आ गया, 180। ओके, सो दैट इज द वे। ओके, सो सी हियर, अब देखो यहाँ पे ड्यू टू द प्रेशर ड्यू टू द कॉन्केविटी, अब यहाँ पे फ्री सरफेस कैसा है, कॉन्केव है, आपको पता है। तो कॉन्केव फ्री सरफेस के वक्त प्रेशर कहाँ पे ज्यादा रहता है, तो प्रेशर आउटसाइड द लिक्विड इज मोर देन द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड। ओके, अब यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू कॉन्केविटी डायरेक्टली आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है, प्रेशर ड्यू टू कॉन्केविटी, प्रेशर ड्यू टू कॉन्केविटी कितना रहेगा, एच रो जी इज इक्वल टू ट्वाइस टी अपॉन आर। सो ट्वाइस टी अपॉन आर डायरेक्टली भी आप यूज कर सकते हो, मगर ये एक्सप्रेशन कैसे आया, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू। Okay, how this expression come? Now we know that a pressure, this is the pressure depth relation. मतलब that part is omitted now from our syllabus. That pressure part is omitted completely. तो pressure depth relation क्या रहता है? Pressure depth relation suppose एक आधा liquid है, एक आधा liquid container है, और यहाँ पे एक आधा मैंने point consider किया, suppose P for example. अब ये point क्या है, ये liquid का ये plane surface है, तो इसका ये पॉइंट प्लेन सरफेस से कितने डेप्थ पे है, h पे है, तो इसके ऊपर प्रेशर क्या एक्ट होता है, P इज इक्वल टू एच रो जी इतना। ओके, सो मगर यहाँ पे हमने जो प्रेशर कंसीडर किया है, इन दिस केस हमारा फ्री सरफेस प्लेन है क्या, यहाँ पे नहीं है, हमारा फ्री सरफेस कैसे है, यहाँ पे हमारा फ्री सरफेस यहाँ पे कॉन्केव है, तो कॉन्केव पे हमारा कैसे आ गया, फिर ये प्रेशर हमने प्रेशर एक्सेस प्रेशर रिलेशन देखा था, Pi माइनस P0 इज इक्वल टू 2T अपॉन R। तो सेम केस हियर, मगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा क्या रहता है, P कॉन्केव, मैं यहाँ पे रफ में लिखता हूँ, आपको यहाँ पे पहले लिखा देते हो, P कॉन्केव माइनस P कॉन्वेक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 2T अपॉन कैपिटल R, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट फ्री सरफेस। तो P कॉन्केव P कॉन्वेक्स क्या आएगा, सपोज P कॉन्वेक्स इज इक्वल टू P0 आउटसाइड प्रेशर माइनस P कॉन्वेक्स इज इक्वल टू 2T अपॉन R। तो P कॉन्वेक्स क्या मिलेगा हमें, P कॉन्वेक्स क्या मिलेगा, P0 माइनस 2T अपॉन R, P0 माइनस 2T अपॉन R। सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किया है, सपोज दिस इज द पॉइंट B, यहाँ पे पॉइंट B कंसिडर किया है, ये आउटसाइड पॉइंट। ओके, तो पॉइंट B, अब देखो यहाँ पे पॉइंट B के ऊपर सपोज ये मेरी कैपिलरी ट्यूब है, ऐसी कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड तो बढ़ रहा है, आपको पता है क्यों बढ़ता है वो देखेंगे हम। तो ये पॉइंट B है, अब B के लेवल पे मैंने इधर पॉइंट कंसीडर किया A, तो हमने अभी देखा कि दोनों पे प्रेशर क्या आएगा, सो दोनों पे प्रेशर क्या आएगा, PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू क्या आएगा, P0 प्रेशर आउटसाइड प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, अब जो पॉइंट B है, पॉइंट B के ऊपर दो प्रेशर एक्ट हो रहे हैं, एक ड्यू टू इट्स डेप्थ, मतलब कितने प्रेशर ड्यू टू द, मतलब कितने डेप्थ के अंदर ये पॉइंट B है, तो इसके ऊपर कितना प्रेशर एक्ट होगा, प्रेशर एट पॉइंट B इज इक्वल टू क्या रहेगा, एच रो जी, मतलब कितने वो पॉइंट B लिक्विड के अंदर, ये लिक्विड का फ्री सरफेस है, यहाँ से सपोज ये डेप्थ h पे है, तो इसके ऊपर दो प्रेशर एक्ट हो रहे हैं, एक हो रहा है प्रेशर ड्यू टू इट्स डेप्थ, कितने खोल है, कितने खोली पे है, ओके, कितने डेप्थ पे है, सो P इज इक्वल टू एच रो जी प्लस एडिशन प्रेशर कौन सा एक्ट हो रहा है, ये P0 माइनस 2T अपॉन R। ओके, ये हमने देखा था एक्सप्रेशन Pi माइनस P0 इज इक्वल टू 2T अपॉन R देखा था, वो एक्सप्रेशन एक्सेस प्रेशर का वीडियो लेक्चर 4 में देखा था, आप उसको देख लीजिए फिर से वीडियो, आपको समझ में आएगा। सो एच रो जी इज इक्वल टू पॉइंट B पे ऊपर कितना प्रेशर एक्ट हो रहा है, प्रेशर ड्यू टू इट्स डेप्थ, मतलब पॉइंट B कितने डेप्थ पे है उसके वजह से एक प्रेशर एक्ट हो रहा है एच रो जी, मतलब जितना ज्यादा डेप्थ के अंदर रहेगा उसके ऊपर उतना प्रेशर ज्यादा रहेगा, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H मतलब उसका डेप्थ, जितने वो पानी लिक्विड के अंदर है। और दूसरा प्रेशर, क्योंकि ये
सरफेस है, तो उसके वजह से कौन सा एक्ट होगा, P0 माइनस 2t अपॉन r, बट PA इज इक्वल टू P0 इज इक्वल टू यहाँ पे P की जगह हम क्या लिखेंगे, P0 PB की जगह, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, h रो g प्लस P0 माइनस 2t अपॉन r। ओके, तो इसका क्या हो गया, P0 कैंसिल हो जाएगा, तो h रो g इज इक्वल टू 2t अपॉन r मिल जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे मिला। ओके, अंडरस्टैंड। तो एक्सप्रेशन कैसे आया ये देखिए, एक बार मैं फिर बताता हूँ। अब यहाँ पे जो फ्री सरफेस है वो कॉनकेव है। अब आपको पता है कि कॉनकेव सरफेस पे क्या होता है कि प्रेशर बाहर ज्यादा रहता है अबव द कॉनकेव सरफेस ग्रेटर देन द इनसाइड द लिक्विड। तो प्रेशर एट कॉनकेव माइनस प्रेशर एट कॉन्वेक्स, ये क्या रहता है, प्रेशर डेप्थ रिलेशन में देखा था हमने, Pi माइनस P0 इज इक्वल टू 2t अपॉन r। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा है। अब सपोज प्रेशर एट कॉनकेव, बाहर का प्रेशर है P0 माइनस P कॉन्वेक्स इज इक्वल टू 2t अपॉन r, तो P कॉन्वेक्स इज इक्वल टू क्या मिला, P0 माइनस 2t अपॉन r। अब मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया यहाँ पे, ये पॉइंट कैपिलरी के बाद एक पॉइंट कंसीडर किया। अब यहाँ पे तो ये पॉइंट सपोज प्लेन सरफेस है, यहाँ पे एक आधा पॉइंट x है, तो इसके ऊपर प्रेशर एक्ट हो रहा P0, तो P0 हमने कैपिलरी फॉर्म में देखा था, P0 जिस पे इस पे एक्ट हो रहा तो PA पे भी उतना ही एक्ट होगा। अब दोनों एक ही लेवल पे है, तो PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू P0। तो PB पॉइंट B पे ऊपर कितना प्रेशर एक्ट हो रहा, एक तो प्रेशर ड्यू टू डेप्थ ऑफ दैट पॉइंट एंड प्रेशर ड्यू टू द कॉनकेविटी, तो कितना एक्ट होता है, h रो g प्लस P0 माइनस 2tr। ओके, तो P0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या, h रो g equal to 2tr। okay, so that is about that expression. You can in your exam you can directly write it because this much explanation is not required, but for your understanding I have explained these things। आपको समझने के लिए मैंने इतना explain किया है, क्योंकि वो समझे बगैर आप भी कंफ्यूज होगे कि डायरेक्टली ये कैसे क्या आया होगा। okay, so it is a very important relation, it may be asked for the 2 or 3 marks and the numerical may be asked on this formula। ओके, सी यार, h रो g इज इक्वल टू 2t अपॉन r, सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। ये कैसे है आपको समझ में आया, क्योंकि पॉइंट B के ऊपर दो प्रेशर एक्ट होते हैं। सीधा सीधा अगर उतना समझ में नहीं आता तो इतना ध्यान रखिए, पॉइंट B के ऊपर दो प्रेशर एक्ट हो गए थे, एक तो प्रेशर ड्यू टू डेप्थ और दूसरा प्रेशर ड्यू टू कॉनकेविटी। तो इसका ये रिलेशन है, h रो g इज इक्वल टू 2t अपॉन r। आपने यही भी याद रखा तो भी दैट इज ओके। सो नाउ सी हियर, अब देखिए यहाँ पे, अब ये कैपिलरी ट्यूब है। ओके, अब मैं इसका थोड़ा एनलार्ज निकालता हूँ, ऊपर का ही डायग्राम, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है। ओके, अब इसको ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, हमने पहले ही बताया था r। अब ये एंगल कितना आ गया, ये टोटल एंगल हो गया 90 प्लस थीटा। अब ये टोटल हॉरिजॉन्टल एंगल मैंने अभी बताया, ये 180 रहता है, तो ये 90 प्लस थीटा हो गया, तो ये एंगल हो गया 90, ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना बचा है, ये हो गया थीटा। तो इसको ऊपर आप cos थीटा अप्लाई कीजिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू इन, सपोज इसको मैं नाम देता हूँ इन ट्रायंगल ABC। सो इन ट्रायंगल ABC cos थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस AB अपॉन BC। तो AB की वैल्यू क्या है, R है, और BC की वैल्यू क्या है, कैपिटल R है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमें, R अपॉन कैपिटल R। R is the radius of capillary tube, R is the radius of curvature of that concave free surface। okay, so now इसमें से R की वैल्यू निकालो, R is equal to क्या मिलेगा, स्मॉल r अपॉन cos थीटा। तो ये R की वैल्यू सीधा सीधा इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 पे से क्या मिलेगा हमें, h रो g इज इक्वल टू 2t अपॉन r। r की वैल्यू क्या मिली, r अपॉन cos थीटा। अब ये cos थीटा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 2t अपॉन r की वैल्यू डाली मैंने यहाँ पे। अब ये इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो 2t अपॉन क्या मिलेगा, cos थीटा डिवाइडेड बाय r, h रो g। अब हमें एक्सप्रेशन किस लिए का निकालना चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल। राइज मतलब हाइट का निकालना है, तो h की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, इसमें से वी गेट h इज इक्वल टू 2t cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा, r रो
जी, ये रो क्या है, इस लिक्विड की डेंसिटी है, और जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए यहाँ पे व्हाट हैपन हियर, अब लिक्विड अगेंस्ट द ग्रेविटी बढ़ रहा है ना। सो अगेंस्ट द ग्रेविटी व्हाई दिस लिक्विड इज राइज अप, that we will see in the next expression. Okay, so this is the expression for capillary rise or fall. Agar if we use liquid like a mercury, okay, so in case of mercury you know that the angle of theta is obtuse, theta की वैल्यू क्या रहेगी, obtuse रहेगी, तो cos theta क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। cos theta नेगेटिव हुआ मतलब आपकी h की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव मिल जाएगी, मीन्स देयर विल बी अ फॉल ऑफ लिक्विड लेवल। ओके, so this is the expression for rise or fall. ये हो गया बाय प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस मेथड से हो गया, क्योंकि हमने क्या कंसीडर किया है, एक कैपिलरी ट्यूब कंसीडर की थी, जो we dip that capillary tube in a liquid. Okay, so what happened, r is the radius of that capillary tube, r is the radius of curvature of that free surface. Okay, अब प्रेशर ड्यू टू कॉन्केविटी, ये हमने कैसे क्या है, मैंने आपको बताया, क्योंकि कॉन्केव रीजन में प्रेशर क्या रहता है, प्रेशर आउटसाइड द कॉन्केव रीजन इज मोर, मतलब प्रेशर कॉन्केव माइनस प्रेशर कॉन्वेक्स इक्वल टू क्या रहता है, 2T/r रहता है। तो प्रेशर आउटसाइड क्या है, P0 है माइनस P कॉन्वेक्स, ओके, इज इक्वल टू 2T/r रहता है। ओके, अब ये P कॉन्वेक्स इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, P कॉन्वेक्स इज इक्वल टू P0 माइनस 2T/r मिला। अब ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P के ऊपर दो प्रेशर एक्ट हो रहे हैं, एक तो प्रेशर ये कॉन्वेक्स की वजह से, तो ये PB के कौन सा प्रेशर हुआ, एक तो डेप्थ, कितने डेप्थ के अंदर है पॉइंट B, सपोज H डेप्थ के अंदर है, तो कितना प्रेशर, H रो G। और दूसरा कौन सा हो रहा है, ये प्रेशर P0 माइनस 2T/r। बट P0 ये क्या होता है, हमने एक अलग पॉइंट कंसीडर किया बाहर, तो यहाँ पे P भी इक्वल टू क्या मिलेगा, P0, P0 क्या हो जाएगा, कैंसिल होता है, फिर उस पे से हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है। बाद में हमने ट्रायंगल ABC कंसीडर किया, ये एंगल थीटा कैसे आया, ये भी मैंने समझाया आपको। अगर ये सपोज ये प्लेन सरफेस है, तो इसका टोटल एंगल कितना रहता है, 180 रहता है। ओके, अब ये टेंजेंट, एंगल ऑफ कांटेक्ट की टेंजेंट है सपोज, ओके, तो ये है थीटा, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हो गया 90 प्लस थीटा, इधर फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हो गया 90, तो ये कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, फिर ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो इसका थीटा है। तो इसी एंगल ABC में, ट्रायंगल में हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली, AB/BC, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो इसकी वैल्यू मिली cos थीटा इज इक्वल टू R/R, और ये कैपिटल R की वैल्यू निकाली उस पे से, तो ये वैल्यू सिंपली यहाँ पे पुट की, सो वी गेट दिस एक्सप्रेशन। So this is the expression for capillary rise or fall. अगर liquid is which does not meet the solid contact is obtuse, means the value of theta is greater than 90 degree. Okay, obtuse रहता है। Okay, तो obtuse रहने के बाद cos theta की वैल्यू क्या आती है आपको पता है, नेगेटिव आती है, तो इस वजह से h क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, मतलब there will be a fall of liquid level or liquid will be depressed. Okay, that is about the expression by pressure depth method. Now we are going to study the same expression by using the forces or component of forces. ये हमने देखा था एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ प्रेशर डिफरेंस मेथड। एक प्रेशर डिफरेंस मेथड हो गया हमारा। अब दूसरा क्या है, अब हमें फोर्स के कंपोनेंट यूज करके ये एक्सप्रेशन डिराइव करना है। अब आपको पता है हमने सेम कैपिलरी ट्यूब की बाय यूजिंग फोर्स मेथड, फोर्सेस यूज करके हम यही एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं बाय यूजिंग दी फोर्सेस यूज मेथड यूज करके हम सेम एक्सप्रेशन, अभी जो निकाला वही एक्सप्रेशन हमें निकालना है। बट वहां पे हमने कैसे निकाला था, एट दैट टाइम वी फाइंड दैट एक्सप्रेशन बाय यूजिंग और प्रेशर डिफरेंस। नाउ हियर वी आर गोइंग टू फाइंड द सेम एक्सप्रेशन बाय यूजिंग दी फोर्सेस और कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस मेथड। Now see here, as we know that against the gravity, what happens when we dip that capillary tube in a liquid which weighs the solid completely or partially? अब देखिए यहाँ पे against the gravity लिक्विड की लेवल क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर हमने ऐसे लिक्विड में कैपिलरी ट्यूब डाली जो सॉलिड को पूरी तरह से या पार्शियली वेट करती हो, तो लिक्विड की लेवल अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है ना, ऊपर जा रही है ना। ग्रेविटी कैसे एक्ट हो गई, अंडर ग्रेविटी मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। सो दैट gravitational force must be balanced by the
some important component of the force. Okay, that is the weight of that liquid. So see here, as this is the capillary tube. Okay, so this is the free surface of liquid. अब ये लेवल यहाँ तक बढ़ गई, मैं कंटेनर वगैरह नहीं शो करता हूँ. सबको ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा. अब यहाँ पे देखिए ये फोर्स को हमने डिवाइड किया है, इसके ऊपर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन Ft cos ऑफ थीटा. इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम इग्नोर करते हैं. ओके, अब ये जो फोर्स है इसको बैलेंस कौन करता है? द मास ऑफ वेट ऑफ लिक्विड. मतलब वेट ऑफ लिक्विड मतलब F इजिकल टू इसके डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करता है ड्यू टू द इट्स वेट. ओके, F इजिकल टू mg. अब देखो अगेंस्ट द ग्रेविटी मतलब लिक्विड लेवल राइज हो रहा है, मींस इट इज द अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है ना. तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है मतलब दैट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय इट्स वेट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स. सो सी हियर, एज वी नो द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन का आपको डेफिनेशन पता है. सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या रहता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ रहता है. बट हियर वी आर कंसीडरिंग द लेंथ एज अ होल सर्कमफरेंस हियर. As see here, if you imagine that this is the whole circumference, it looks like a circle. Okay, so that's why you know that यहाँ पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना आएगा? Ft की वैल्यू क्या मिलेगी? T into L. बट यहाँ पे हम लेंथ क्या कर रहे हैं? दैट होल सर्कमफरेंस. वी आर कंसिडरिंग द लेंथ एज अ होल सर्कमफरेंस. तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या आता है आपको पता है? क्या आता है? ट्वाइस पाया. तो Ft फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है? T into twice pi r. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. अब देखिए यहाँ पे लिक्विड हमारा राइज हो रहा है और अगेंस्ट द ग्रेविटी राइज हो रहा है. तो हमने इस फोर्स को क्या किया? डिवाइड किया दो कंपोनेंट. मतलब हम एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं Ft cos थीटा. अब इस Ft cos थीटा को बैलेंस कौन करता है? दिस Ft cos दिस वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, आई विल राइट सिंपली इट एज F. तो F इज इक्वल टू क्या है? Ft cos ऑफ थीटा. तो Ft की वैल्यू बताए आपको, इक्वेशन 1 पे से पुट कीजिए, ट्वाइस पाई r t इंटू cos थीटा. ओके, ये है हमारा वर्टिकल फोर्स. आप उसको F भी लिख सकते हैं सिंपली, और सिंपली F लिखा तो भी चलेगा. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब देखो ये वर्टिकल फोर्स का कंपोनेंट Ft cos थीटा. दिस कंपोनेंट वर्टिकल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द लिक्विड. मींस दैट वेट इज नथिंग बट द डाउनवर्ड फोर्स m into g. ओके, तो वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? दैट डाउनवर्ड फोर्स बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ अ लिक्विड. सो F इज इक्वल टू इट इज Fv. ओके, तो F की वैल्यू क्या है? F इज इक्वल टू F लिखिए, जो भी आपको इजी लगता है. तो F की वैल्यू क्या है आपको पता है? ट्वाइस पाई r t इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू F की वैल्यू क्या है? m इंटू जी. अब देखिए यहाँ पे इजी एक्सप्रेशन है थोड़ा आपको. अब देखिए इस लिक्विड की डेंसिटी हमने क्या कंसीडर की थी? द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो. ओके, और डेंसिटी मतलब क्या रहता है? मास अपॉन वॉल्यूम रहता है. तो इसमें से मास की वैल्यू क्या मिलेगी? रो इंटू वॉल्यूम. अब वॉल्यूम, अब ये देखिए ये सिलेंडर है, सो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहता है आपको पता है? रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच. सपोज ये सिलेंडर है ऐसा. अब इसका वॉल्यूम आपको निकालने के लिए कहा है, तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा? सपोज इसकी लेंथ है h, जैसे हमारा ये लिक्विड राइज हो गया h, तो इसका क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच इंटू एरिया इंटू हाइट. ओके, तो पाई आर स्क्वायर एच ये आ गया. तो मास की वैल्यू हम यहाँ पे ये डालेंगे. ओके, तो m की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? रो पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू ये g एज इट इज रहेगा. तो ट्वाइस पाई आर टी कॉस थीटा. ओके, तो ये पाई कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, ये पाई कैंसिल हो गया, इधर का एक आर कैंसिल हो गया. तो हमें क्या बचा यहाँ पे? 2t कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि ये आर कैंसिल हो गया और ये पाई भी कैंसिल हो गया. यहाँ का पाई कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया. तो क्या बचा यहाँ पे? रो आर एच जी. ओके, यहाँ पे पाई और एक आर कैंसिल हो गया. तो हमें निकालना किसकी वैल्यू है? h की वैल्यू निकालना है. तो h इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 2t cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे? यस, तो यहाँ पे तो ये रो आर जी नीचे आएगा, रो आर इंटू जी.
So this is the expression for rise or fall of a liquid inside the capillary tube. सेम एक्सप्रेशन आ गया, आपने जो पहला देखा होगा वो और ये एक्सप्रेशन सेम ही है. तो वहां पे हमने प्रेशर डिफरेंस मेथड यूज किया था, एंड हियर वी आर यूजिंग, यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पे वी आर यूजिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस और बाय यूजिंग फोर्सेस. यहाँ पे क्या होता है, ये हमने जो लिक्विड लेवल राइज हो रहा है, तो यहाँ पे जो इसको इस फोर्स को हमने फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया. वर्टिकल कंपोनेंट Ft cos थीटा जो इंपॉर्टेंट है वही कंसीडर किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने इग्नोर किया है. यहाँ पे हमें पता है सरफेस टेंशन का डेफिनेशन T इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या रहेगा, T इंटू L. बट L यहाँ पे ट्वाइस पावर क्यों लिया है, वी आर कंसीडरिंग दिस एज अ होल सर्कम्फरेंस, फ्री सरफेस एज अ होल सर्कम्फरेंस, सो दैट्स व्हाई इट इज दिस. अब ये वर्टिकल फोर्स का कंपोनेंट हमने कौन सा कंसीडर किया है, Ft cos थीटा. ओके, अब ये Ft cos थीटा को कौन बैलेंस करता है, दिस Ft cos थीटा इज बैलेंस बाय द वेट mg, दैट डाउनवर्ड फोर्स mg. तो Fp इज इक्वल टू दैट डाउनवर्ड फोर्स F. तो Fp की वैल्यू हमने यहाँ से डाली, तो mg, तो m की वैल्यू सिंपली यहाँ से निकाली, तो वी गेट दिस एक्सप्रेशन. और फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आल्सो वी कैन फाइंड द सरफेस टेंशन. आपको यहाँ से T निकालना है, तो T की वैल्यू क्या आएगी आपको, T इज इक्वल टू सरफेस टेंशन निकालना है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस एच रो आर जी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2t cos ऑफ थीटा. तो t निकालना है तो क्या आएगा आपका, एच रो आर जी डिवाइडेड बाय 2 cos ऑफ थीटा. सो दिस इक्वेशन आल्सो गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर सरफेस टेंशन. सो इन योर एग्जाम very numeric, very important formula, both are the very important formulas, and if you remember one formula you can easily find the H also, and you can easily find the surface tension also. So on this based on this formula numerical may be asked in your exam. Okay, so this is about the expression. From this equation we get the expression for surface tension also. So H rho Rg upon 2 cos theta, that is the expression for surface tension. Okay, so this is about the राइज और फॉल. तो एक हमने प्रेशर मेथड से सॉल्व किया, दूसरा हमने फोर्सेस से. अब देखिए यहाँ पे अगर आप हमको इस एक्सप्रेशन से सरफेस टेंशन का तो एक्सप्रेशन मिल गया है ना. सरफेस टेंशन का एक्सप्रेशन क्या मिला हमें, T इज इक्वल टू एच रो आर जी अपॉन 2 cos थीटा, ये एक्सप्रेशन मिल गया. सपोज मेरे पास अब एक कंटेनर है, इसमें मैंने लिक्विड डाला है, कोई भी पार्शियल या कोई भी वेट करता हो और डज नॉट वेट. अब मैंने इसमें दो कैपिलरी ट्यूब्स डाली है. एक मेरी कैपिलरी ट्यूब, पहली वाली कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस है R1 है. दूसरी मैंने कैपिलरी ट्यूब डाली है जिसका रेडियस है R2 है. अब लिक्विड एक ही है मेरा, तो लिक्विड का सरफेस टेंशन तो सेम ही रहेगा. ओके, अब इसमें सपोज इसका डायमीटर रेडियस अलग है, तो इसमें से लिक्विड का लेवल सपोज H हाइट तक बढ़ा या कम हो गया, इसमें H1 तक बढ़ गया, इसमें सपोज H2 तक बढ़ा या जो भी हो रहा है, फॉल होगा, मे बी राइज होगा. हम यहाँ पे राइज कंसिडर करेंगे. H1 तक बढ़ा, H2 तक बढ़ा दूसरे इसमें, तो दोनों का सरफेस टेंशन सेम है. तो T इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें पहले कैपिलरी ट्यूब के लिए, H1 रो, डेंसिटी तो लिक्विड एक ही है, R1 इंटू जी डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा. लिक्विड एक ही है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक ही रहेगा. ओके, तो T इक्वल टू T तो सेम ही रहेगा ना, T1 T2 नहीं रहेगा. तो दूसरी कैपिलरी ट्यूब के लिए क्या रहेगा, H2 रो R2 जी अपॉन 2 cos थीटा. ओके, तो ये 2 cos थीटा हो गया. ओके, अब देखो दोनों का लेफ्ट हैंड सेम है, मतलब राइट साइड भी सेम रहना चाहिए, तो दोनों को हम इक्वेट करेंगे. तो क्या मिलेगा, H1 रो R1 जी अपॉन 2 cos थीटा इज इक्वल टू H2 रो R2 जी अपॉन 2 cos थीटा. ओके, अब देखिए क्या क्या कैंसिल होता है, रो कैंसिल, जी कैंसिल, 2 cos थीटा कैंसिल, तो बचा क्या, H1 R1 is equal to H2 R2. This is also the important formula, and on the basis of this formula the numerical for the 2 marks may be asked in your examination. So note down all these things, these are very important. So today we study about the why there is a fall of liquid level inside the capillary tube, why there is a fall of liquid level inside the capillary tube, and why there is a rise of liquid level inside the capillary tube, and the expression for rise and fall of a liquid level inside the capillary tube by 2 methods. One is by pressure difference method and other is by what,
component of forces method. Okay, so thank you very much.